Hello students, good morning. It is your economics period. Chapter 3, Poverty as a Challenge. Topic is Special Poverty Alleviation Programs. Special Poverty Alleviation Programs. Students, in previous video, we have studied about government policy for poverty alleviation. But those policies are not direct attack on the problem of poverty like economic growth, agricultural development, development of cottage and small scale industries, land reforms, population control, public distribution system. These policies formed by the government for poverty alleviation, but through these policies we were unable to get our target. Due to this reason, since the fifth 5-year plan, special poverty alleviation programs launched by the government to direct attack on the problem of poverty. 5-year plans. Students, after the independence, our government launched 5-year plan for the development of the country. Its duration 5 years. In this 5-year plan, the target of development according the budget given, which prepared by the Planning Commission of India. Since the fifth 5-year plan, 1974 to 79, poverty alleviation has been adopted as an explicit objective of economic planning. Explicit means clear. Explicit objective means clear objective. मुखर उद्देश्य. Since the fifth 5-year plan, 1974 to 79, poverty alleviation has been adopted as an explicit objective of economic प्लानिंग. आर्थिक नियोजन में फिफ्थ 5-year प्लान जो 1974 से 79 तक थी, वहीं से इसको अडॉप्ट किया गया, जिसमें एक क्लियर ऑब्जेक्टिव मीन्स मुखर उद्देश्य इकोनॉमिक प्लानिंग का किया गया, जिसके द्वारा पॉवर्टी पर डायरेक्ट अटैक किया गया. सिंस द फिफ्थ 5-year प्लान 1974-79, poverty alleviation has been adopted as an explicit means clear
objective of economic planning so as to launch a direct attack on the problem of poverty through special poverty alleviation programs. Special poverty alleviation programs. First, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. Its short name is JGSY, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. The JGSY means Jawahar Gram Samriddhi Yojana was introduced in April 1999. It has two main objectives. First means A, to create durable, productive community asset and infrastructure at the village level. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के दो उद्देश्य थे. पहला था कम्युनिटी एसेट मीन्स सामुदायिक संपत्ति तथा इंफ्रास्ट्रक्चर. सामुदायिक संपत्ति तथा इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका मतलब हुआ कि गांव के लेवल पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाएं जिसका फ़ायदा गांव के लोगों का लगातार मिलता रहे. जैसे स्कूल है, हेल्थ सेंटर हैं, सड़कें हैं. इन सब का विस्तार किया जाए तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनके काम भी लंबे समय तक आता रहेगा. B, to generate wage employment for unemployed poor in the rural areas. पहला उद्देश्य क्या था? कम्युनिटी एसेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड ऑब्जेक्टिव टू जनरेट wage employment for unemployed poor in the rural areas. वेज एम्प्लॉयमेंट ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो परमानेंट नहीं होता. जो एम्प्लॉयमेंट डेली वेजेस पर होता है उसको हम वेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. जैसे लोग सरकारी ऑफिसेस में काम करते हैं या फैक्ट्री कारखाने में काम करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है. तो क्या है? सैलरी एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट डेली वेजेस पर जो लोग काम करते हैं उनको मजदूरी मिलती है, उसी को हम वेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड पुअर इन रूरल एरियाज. This program is implemented by ग्राम पंचायत और इस प्रोग्राम को ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया गया. 75:25. It means the whole expenditure, 75% of whole expenditure given by the central government and 25% of whole expenditure given by state government. 75:25 means if 100 rupee is expenditure, then 75 rupee given by the central government and 25 rupee state government.
सेकंड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, its short form is SJGSY. The SJGSY came into effect on 1st April 1999 as a self-employment program for the rural people, especially poor belonging to SCs and STs. SCs and STs and women. SJGSY प्रोग्राम एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम था। इसके माध्यम से उन लोगों को लाभ मिलता था जो लोग SC या ST या महिलाएं होती थीं। इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता था। इट हेल्प्स द रूरल पीपल इन फार्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इट हेल्प्स रूरल पीपल इन फार्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, providing training, promotion, infrastructural development, providing in financial assistance and marketing support. SJGSY के अंतर्गत जो STs SCs होते थे, महिलाएं होती थीं अनएम्प्लॉयड, ये लोग अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते थे। कई लोग मिल करके एक अपना संस्था बनाते थे और उसमें सब लोग मिल करके काम करते थे। जैसे कालीन की बुनाई है या कपड़े की बुनाई है या पिकल्स बना रहे हैं जिसको हम अचार कहते हैं, या जो है चिप्स पापड़ यह सब बना रहे हैं। ये सब बना करके लोग बेचते थे। तो गवर्नमेंट इनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाई और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता था उसकी व्यवस्था करती थी। और हाँ, फाइनेंशियल हेल्प भी गवर्नमेंट करती थी और उसकी मार्केटिंग के लिए भी सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। एक विभाग होता था गवर्नमेंट का, उसकी देखभाल करता था। इस तरह से लोग अपनी अर्निंग करते थे। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS. This scheme was launched on 2nd October 1993. This scheme was launched on 2nd October 1993 for rural backward blocks situated in drought-prone, desert, tribal and hilly areas. A एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जो थी, इसको 2 अक्टूबर 1993 को लॉन्च किया गया। ऐसे ग्रामीण ब्लॉक्स जो सूखाग्रस्त एरिया, डेजर्ट एरिया, ट्राइबल एरिया या हिली एरिया होती थी, वहाँ पर इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया, इस प्रोग्राम को। इट वाज रीस्ट्रक्चर्ड इन 1999 to 2000। इसको 1999-2000 के फाइनेंशियल ईयर में रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, मतलब उसमें कुछ बदलाव किया गया
to make it single wage employment, to make it single wage employment program. It aims to providing 100 days of work to two members of a rural family in the agricultural lean season. इसको जब रीस्ट्रक्चर किया गया इस प्रोग्राम को 1999-2000 में, तो इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई जब एग्रीकल्चरल वर्क नहीं होता है, जैसे हार्वेस्टिंग, सोइंग, यानी खेतों में काम जब नहीं होता, ऑफ सीजन होती है, लीन सीजन होती है, तो उस समय जो अनएम्प्लॉयड पुअर पीपल हैं वो क्या करते बेचारे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 100 डेज के लिए 100 साल भर में 100 डेज के लिए उनको काम देने की व्यवस्था बनाई गई कि 100 डेज काम सरकार देगी। कब देगी? जब खेतों में काम उनके लिए नहीं रहेगा, सीजन ऑफ रहेगा, लीन सीजन में गवर्नमेंट उनको काम देगी और साल में 100 डेज उनको मिलेगा और एक परिवार के 2 लोगों को ही काम मिल सकेगा। इस तरह से व्यवस्था बनाई गई इसमें।